روشناس کراتی ہے۔ آج کے دور میں دیکھا جائے تو یہ دور جو ہے کمپیوٹر کا زمانہ ہے۔ اگر ہم نے ان معمار جو آج کے بچے ہیں یہ کل کے معمار بھی ہیں، اگر ان کی نشو و نما اور ان کی اہلیت اور ان کی تعلیمی صلاحیت کو اگر اجاگر ہم کر رہے ہیں، جس میں سب سے بڑا تعاون کالیا گروپ کا ہے، میں ان کو سب کے سامنے ایک ورکر کی حیثیت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دوستو، آج جب ہم اس پروگرام میں اپنے محترم ہمارے بہت ہی شفیق انسان جنہوں نے سیاست کا جس کو کہتے ہیں کہ الف بے ہمیں سکھایا، نثار امن کھوڑو صاحب کے ساتھ جب ہم اس علاقے میں آئے تو مجھے دیکھ کے اور ایک ذکر جب نکلا تو میں کہتا ہوں کہ بے اختیار ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ وہ دن تھے جب ہم اپنی قائد کے ساتھ یہاں پہ آتے تھے، لیکن آج اس پسماندہ علاقے میں ہم اس کے ورکر اپنے بھائیوں اور دوستوں کے درمیان ہیں۔ یہ دکھ ایسا ہے جس کو ہم کبھی بھی بھلا نہیں سکتے۔ دوستو، یہ ایک بڑی قربانی ہے، آپ اس کو ایک معمولی قربانی نہیں سمجھیں۔ اس قربانی کے پیچھے آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں میں کہتا ہوں کہ یہ ہمیں ایک راستہ دکھایا ہے۔ ہماری شہید بیوی کی قربانی نے میں کہتا ہوں کہ کونے کونے میں یہ ایک روشنی پھیلائی ہے کہ جی قربانی دینا بھی کوئی دے سکتا ہے۔ ہمیں درس دیا ہے کہ قربانی دے کے چلو اور اس معاشرے اور اپنے ملک کو سدھارتے چلو۔ یہ ایک مشن ہے، اور آپ کو یہ بات بھی میں بتاتا چلوں کہ ہم جب اپنے آفیسز میں بیٹھتے ہیں ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں ایز اے ورکر ہم نے اپنی قائد، اپنی شہید بیوی کو آگے بھی ہم نے اپنے اوپر رکھا ہوا ہے اور سائڈوں میں بھی، ساتھ میں بھی۔ صرف مہتاب صاحب اور شاہرہ بانو نے جو تقریر کی اس میں انہوں نے کہا کہ بہت سارے ایم این ایز اور ایم پی ایز آئے ہوئے ہیں، تو میں نے اپنے لیفٹ کی جانب دیکھا تو مجھے کوئی ایم پی نظر نہیں آیا، لیکن جب رائٹ کی طرف میں نے نگاہ گھمائی تو وہاں تمام کے تمام ایم پی ایس بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج ماشاء اللہ اسی کمپیوٹر سینٹر کے طالب علم کے بڑی خوش نصیبی ہے کہ اتنی بھاری بھرکم شخصیت میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ محترم جناب شیر محمد بلوچ صاحب آپ بھی موجود ہیں۔ نثار صاحب آپ کے آنے سے پہلے یہاں پر ایک نغمہ بجا، آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو پاکستان کی، تو ہم بھی ساتھ ساتھ پاکستان کے سیر پر نکل گئے۔ ہر جگہ مایوسی نظر آتی رہی، لیکن جب نغمہ ختم ہوا تو جب اس پنڈال میں آئے، ان چھوٹے بچوں کا ولولہ دیکھا، ان چھوٹے بچوں کا جوش دیکھا، تو یہ مایوسی ہماری کچھ حد تک دور ہوئی۔ اور اس کے بعد حنیف اسکالر کا مشن دیکھا کہ یہ آدمی کیا کر رہا ہے۔ اس آدمی کا ایک مشن ہے۔ حقانی صاحب، میں اتنی تقریر کروں گا جتنا وقت آپ نے لیا ہے، کہ یہ آدمی نے جب یہ مشن اپنے ہاتھ میں اٹھایا تو سب سے پہلے 26 کمپیوٹر سینٹر انہوں نے قائم کیے میمن برادری میں۔ اس کے بعد اس نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی، کانوں کو کھلا رکھا، شاہرہ بانو کو ساتھ رکھا، اور یہ آدمی دیکھتا نہیں ہے کہ مجھے کہاں کمپیوٹر سینٹر کھولنا ہے، لیکن یہ دیکھتا ہے کہ کہاں سے آواز آئی ہے، پاکستان کے کس علاقے میں کھولنا ہے، اور الحمدللہ جس جگہ بغیر کسی نعت جات ذات بغیر یہ ہر مقام پر صرف پاکستانی ہونے کے حیثیت سے یہ آدمی خدمت کر رہا ہے، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے لیے مدد نہیں مانگ رہا۔ یہ آدمی کھوڑا صاحب بڑے بڑے سرمایہ دار میں نے دیکھے ہیں،
करोड़पति, अरबोपति, खरबोपति, अल्लाह ताला ने उनको ये सादत नसीब नहीं दी कि अगर एक सरमाएदार है और उसने 2, 4, 5 करोड़ रुपए किसी को दे दिया तो कोई बड़ा तीर नहीं मारा, इसलिए कि पैसा उसको अल्लाह ने दिया है। लेकिन अगर एक सरमाएदार एक छोटे वर्कर के माने अगर ये वक्त देता है 24 घंटे में से कम 8-10 घंटे इन नई नस्ल के लिए देता है, तो मैं समझता हूँ कि उस करोड़ और अरबों रुपयों से इसका वक्त बड़ा अहम है। और हनीफ काली की ज़ात ऐसी है कि ये सिर्फ वक्त देता है, सिर्फ सरमाया देता है, लेकिन सरमाए के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये हर मकाम पर वक्त देता है, जो कि बड़े लोगों का जिसकी कमी है ये पाकिस्तान के लिए अपने वक्त कुर्बान करता है। और अल्लाह का करम है, मैं आज यहाँ पर एक वादा दोहराऊंगा सहरा बानू के साथ कि इंशाअल्लाह जब इस इलाके में 100 कंप्यूटर आप मुकम्मल कर लें तो लियारी का इलाका गरीब है, पैसों से गरीब है, लेकिन इज्जत देने में सबसे ज़्यादा अमीर इलाका है ये। और इंशाअल्लाह ताला सबसे पहले ताजपोशी जो होगी वो इस इलाके से हम करेंगे, सहरा बानू और हनीफ इस्कालिया की। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह ऐसा हनीफ इस्कालिया और एक सहरा बानू जैसा जज्बा चंदे को और में दे दो, ताकि ये कि हमारे पाकिस्तान की हम किस्मत बदलने के कामयाब हो जाएं। एक उम्मीद की किरण निशार फोरो साहब बैठे हुए हैं, सियासी बहुत सारी बातें हुई हैं। निशार साहब 61 साल में एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी है, जिस पर शायद आपने तो गौर किया होगा, सियासी लीडर हैं, आम लोगों ने गौर नहीं किया होगा। ये मौजूदा क़यादत का सबसे बड़ा कारनामा है कि इन्होंने इस बात पर सोचा कि अगर हमको पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है, मुखालिफत का जज्बा ख़त्म करना चाहिए। और ये ज़रदारी साहब का कमाल है कि इन्होंने तमाम के तमाम लोगों से मुवाफ़क़त की है, तमाम के तमाम लोगों से हाथ मिलाया है और सबको दावत दी है कि आओ हमारे साथ बैठकर हम तमाम हुकूमत करें। ये 61 साल के अंदर पहला ये वाक़या आप लोगों ने पेश किया है। और निशार साहब मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आपकी अभी ये नाव जो है पहले गेयर में है, दूसरा गेयर होगा, चौथा गेयर होगा, जब फुल स्पीड में आएगी इंशाअल्लाह ताला लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। और जिस अंदाज से आप लोग जिस मिशन को लेकर चले हो, अल्लाह ताला हमारी दुआ है कि इस पाकिस्तान को आपकी सरपरस्ती नसीब हो, अच्छी तरीके से तमाम मिलजुल कर काम करें और आगे बढ़ें। हनीफ इस्कालिया साहब की में से एक बात मैंने सबक हासिल किया है, जो हमारे टीचर हजरात बैठे हुए हैं और जो आम लोग बैठे हुए हैं, कि अगर आप चाहते हो अपनी नस्लों को बनाना चाहते हो तो खुदा की कसम अपनी नस्लों की फिक्र छोड़कर दूसरे की नस्लों के ऊपर आप अपनी तवज्जो दें, अल्लाह ताला अपनी नस्लों को आबाद करेगा। जिस तरीके से अल्लाह ताला ने हनीफ इस्कालिया साहब को औलाद दी हुई है, ये इसी बदौलत दी हुई है कि ये दूसरों की नस्लों की फ़िक्र करते हैं। अगर आप दूसरों की नस्लों की फ़िक्र करेंगे, दूसरों की नस्लों को आबाद करेंगे, तो अल्लाह ताला आपको ऐसी औलाद से नवाजेगा जो कि पूरी मुल्क और दुनिया की खिदमत करने के काबिल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप लोगों की। दानी साहब ने अपनी स्पीच में एक जुमला कहा कि जब 100 कंप्यूटर इस लियारी में हो जाएंगे तो लियारी के अफराद, लियारी के बाशिंदे हनीफ इस्कालिया साहब की ताजपोशी करेंगे। तो मैं यहाँ इस बात की मज़ीद वजाहत यूँ करूँ कि हम अहलियान लियारी हनीफ इस्कालिया को गैर नहीं समझते, हम समझते हैं कि ये हमारे लियारी के बाशिंदे हैं और इसीलिए सबसे पहले शायद उन्होंने लियारी को तरजीह दी। और वक्त की कमी के पेश नज़र मैं चाहूँगा कि इस प्रोग्राम को इख्तितामी मनाज़िल तक पहुँचाया जाए। तो मज़ीद वक्त ज़ाया के बगैर मैं दावत दूँगा अपने मोहतरम जनाब हनीफ इस्कालिया साहब को, चेयरमैन कोऑर्डिनेशन ग्रुप, कि वो आएँ और आज की इस तकलीफ के बारे में अपने ख्यालात का इज़हार करें। भरपूर तालियाँ चेयरमैन साहब के लिए। Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Acting Governor Speaker Singh, Janab Nisar Ahmed Khoro Sahab, Honorable Minister Janab Jam Mehtab Hussain Sahab, Dr. Nasrullah Baloch Sahab, MPA,
जनाब फयाज अली भट्ट साहब MPA, जनाब इमदाद साहब, गफ़ार अकानी साहब, मेरे उस्ताद, हमारे उस्ताद अब्दुल मजीद अफगानी साहब और दीगर मोअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी, मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा कराम, मीडिया के मोअज़्ज़िज़ नुमाइंदगान, अजीज़ बच्चों और बच्चियों, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक कोऑर्डिनेशन ग्रुप KRG का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ बड़ी तफसीली ब्रीफिंग दे दी है डॉक्टर साहिरा बानो ने, तो वक्त की कमी की वजह से मैं इसकी दोबारा तफसीलात में नहीं जाऊँगा। मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करूँगा कि लियारी का ये मेरे हिसाब से 7वां कंप्यूटर सेंटर है और तकरीबन हर कंप्यूटर सेंटर में 10 कंप्यूटर्स एवरेज हमने दिए हैं। इस तरह से 70 का ऑलरेडी कंप्यूटर्स हमारे हो गए हैं और जैसे जैसे इनकी डिमांड होती है हम मजीद जो है वो कंप्यूटर सेंटर देते जाते हैं, उनकी डिमांड को मॉनिटर करते हुए। और ये नहीं कि हम कंप्यूटर सेंटर बना के इसको छोड़ देते हैं, हमारी टीम जो है हर कंप्यूटर सेंटर कराची से लेकर खैबर और आज़ाद कश्मीर तक उसको मॉनिटर भी करती है और जहाँ जहाँ इनको प्रॉब्लम होते हैं वो दूर किए जाते हैं। तो ये जो बात हुई है कि ये ग्रास रूट लेवल पे हम ये कंप्यूटर सेंटर जो है ये अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। जैसे हमारा पाकिस्तान का जो लार्जेस्ट इंटरएक्टिव वेब पोर्टल है tailpoint.com, वो भी कंप्यूटर कल्चर क्रिएट कर रहा है और वो जो है वो ग्रास रूट लेवल पे है। और अगर iTech पे जो है तो हमने माइक्रोसॉफ्ट की गोल्डन पार्टनरशिप में एक कैलसॉफ्ट एकेडमी भी हमने बनाई हुई है और इसकी iTech का अंदाजा इस बात से लगा लें कि जितनी भी पाकिस्तान की कंप्यूटर जो यूनिवर्सिटीज़ है, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स है, जब वहाँ से हमारे बच्चे, हमारे नौजवान ग्रेजुएट्स कंप्यूटर साइंस में या मास्टर्स कर लेते हैं, इसके बाद जो है ये कैलसॉफ्ट एकेडमी में जो है, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो माइक्रोसॉफ्ट के टाउन्स हैं, इनको 6 माह की रिगोरियस ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो हमारे मकामी तो इन नौजवानों को इस काबिल बनाना कि ये लीडिंग सॉफ्टवेयर में पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर जाकर काम कर सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत से नौजवान जो हैं वो बाहर जाके पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं और कीमती जर मुबादला जो है कमा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि गल्फ में, पूरे गल्फ में कैलसॉफ्ट को बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड माइक्रोसॉफ्ट ने दिया है। तो ये हमारा जो है कैलसॉफ्ट का ये स्टैंडर्ड है, कोऑर्डिनेशन ग्रुप का जो हमारा जो मयार है ये है कि दुनिया भर से जो है इसको अप्रिशिएट किया जाता है। और वक्त की कमी की वजह से निसार खोरो साहब को ज़िंदगी के बारे में मैंने काफ़ी पढ़ा और जाना है। इन्होंने बहुत कम अरसे में ये पोजीशन हासिल की है। ये आप लोग टाइप करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह गैर मामूली तौर पे इन्होंने ये पोजीशन जो है बहुत कम अरसे, इंशाअल्लाह आई एम वेरी होपफुल कि सिंध जो है वो पहले से ज़्यादा कई गुना जो है और बहुत जल्द जो है वो तरक्की करेगा। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को MBA समझते हुए इसको प्रायोरिटी नंबर डॉक्टर साहिरा ने बताया कि एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज हो, अब IT के बगैर जो है वो तरक्की नहीं कर सकते। तो इसको तो लाजमी जो है हमको प्रायोरिटी नंबर 1 देना है। तो मुझे यकीन है। और जहाँ तक हमारे उस्ताद अब्दुल मजीद अफगानी ने बात की है और इसके लिए हमारे गफ़ार अकानी साहब का भी हमारा हमेशा मॉरल सपोर्ट होगा हर प्रोग्राम के लिए, हर काम के लिए। ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि हम उनसे कोई प्लॉट मांगे या कोई डोनेशन मांगे, हम सिर्फ आपसे मॉरल सपोर्ट चाहते हैं और ये आपसे ये गुजारिश करते हैं कि IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को प्रायोरिटी नंबर 1 दिया जाए और इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जो है वो बनाया जाए। और जहाँ तक हमारे अब्दुल मजीद अफगानी साहब ने कहा है कि यहाँ आप अगर 100 कंप्यूटर सेंटर मुकम्मल कर लेंगे तो आपको टास्क फोर्सिंग करवाएंगे, ये भी हमारा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि
ग्लोबल आईटी मैप, वर्ल्ड का जो आईटी का जो नक्शा है उसको, उसमें पाकिस्तान की एक रिस्पेक्टेबल जो है प्लेस पोजीशन हासिल करें। अगर इस ऑब्जेक्टिव हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा कोई काम मेरे लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए नहीं हो सकता। क्योंकि आज हम ऑनरेबल स्पीकर और एक्टिंग गवर्नर को सुनने के लिए यहाँ जमा हुए हैं, तो मैं आप लोगों को ज़्यादा वक्त लेना नहीं चाहूँगा और आप सबको खास करके इस स्कूल के मैनेजमेंट, असातिज़ा और बच्चों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो अब जो है एक आईटी जो दौर है उसमें शामिल हो गए हैं और मुझे उम्मीद है कि इससे हमारे बच्चे जो है, जो यहाँ के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाएंगे। और आखिर में निसार फरोज साहब एक गुजारिश में और करना चाहूँगा कि पिछले माह हमने नेवल एक्ट जो नेवल क्वार्टर्स है वहाँ पे कंप्यूटर का इफ्तिताह किया, मगर वहाँ जाकर हमको ये जानकर बहुत अफसोस हुआ कि वहाँ 2-3 माह हो गए वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। आप बताएं कि आपने इतना कंप्यूटर सेक्टर, इतने वसाइल आपने वहाँ सर्व किए और अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो ये हमारे बच्चे जो है वो किस तरह ये कंप्यूटर से फ़ायदा उठाएंगे और इस तरह ये जो हमारे वसाइल है वो ज़ाया हो रहे हैं। एक दफ़ा फिर निसार फरोज साहब और जो हमारे जो मिनिस्टर हैं और MPs हैं उनका मैं तहे दिल से मशकूर और ममनून हूँ कि आपने क्योंकि औकात में से कुछ वक्त जो है इस प्रोग्राम के लिए दिया, इस नेक्स्ट मकसद के लिए दिया, इस नोबल ऑब्जेक्टिव के लिए दिया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़। जगन अनिवैस कालिया साहब आपसे मुखातिब थे। अब आखिर में आज के इस महफिल के मेहमान खुसूसी स्पीकर सिंध असम्बली कायम मकाम गवर्नर सिंह जनाब मोहतरम निसार अहमद फरोज साहब से गुजारिश करूँगा तो स्टेज पर तशरीफ लाएँ और आज के इस प्रोग्राम के हवाले से अपने ज़रूरी ख्यालात का इज़हार करें। जनाब निसार अहमद फरोज साहब मेरे साथ आए हुए MNA जनाब मियाँ मिठू साहब, जाम मेहताब दहर वज़ीर पॉपुलेशन प्लानिंग, MP हजरात, हकानी साहब और इस इलाके में इलाके की रौनक मौजूद दोस्तों, ख़वातीन, बच्चों, मेरे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। जी भुट्टो, सबसे पहले तो डॉक्टर सायरा का शुक्रिया ही कहूँ क्योंकि अगर वो फ़ोन पे इसरार न करती तो शायद मैं ना आता आज, लेकिन कालिया साहब या सायरा अगर अपने दिल से और लगन से कुछ काम करना चाहते हैं तो हम सब का भी फर्ज बनता है कि हम उनकी हिम्मत अफजाई करें और जो उन्होंने रफ़ाई काम शुरू किया है उसकी तारीफ करने के लिए जहां वो हमें चाहें हम वहां पहुंचे। मुझे इससे ज़्यादा तो इससे खुशी है कि मैं आज एक पीले स्कूल में खड़ा हूं, पीले काले स्कूल में खड़ा हूं। कंप्यूटर सेंटर की इफ्तिताही तकरीब है, 10 कंप्यूटर लगा चुके हैं, बच्चे पढ़ना शुरू हो चुके हैं। यहां अपने साथियों के साथ आया हूं और ये मैं इसलिए याद कह रहा हूं कि ये कोई पहला मौका नहीं, लेकिन याद आता है मुझे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, 1988 का जमाना था।
हम पहली दफा MPA बने थे, वो प्राइम मिनिस्टर बने थी मुस्लिम ममालिक की, और मुस्लिम उम्मा की पहली दफा खातून वजीर आजम बनी थी, और लाड़काना आई थी। और आप हैरत करेंगे कि पहला प्रोग्राम जो लाड़काना में उन्होंने अरेंज करवाया था वो एक कंप्यूटर सेंटर के इफ्तिताही तकरीब थी। कंप्यूटर सेंटर की इफ्तिताही तकरीब करते हुए हम सोच रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर साहिबा आई है और आके कंप्यूटर का इफ्तिताह कर रही है, कोई इतना बड़ा प्रोग्राम तो नहीं है। लेकिन जब उसके मुंह से ये सुना कि आगे आने वाला दौर कंप्यूटर का दौर है, और जो कंप्यूटर सीखा हुआ नहीं है वो समझो पढ़ा हुआ नहीं है, वो पढ़ा लिखा नहीं कहलाएगा जो कंप्यूटर सीखा हुआ नहीं होगा। तो वो बात सुनकर एक बात बैठ गई कि 1988 से लेके इसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए उस वक्त की वजीर आजम साहिबा ने, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने जो रास्ता दिखाया, आज हमारे पता नहीं कितने दोस्त, आप माने कितने मुखियर हजरात, जहां जहां हुकूमत कमजोर पड़ जाती है, जहां जहां वफद फंड कम पड़ जाते हैं, वहां कालिया जैसे लोग, उनके ग्रुप जैसे लोग निकल पड़ते हैं कि अपने भाइयों और बच्चों की खिदमत करें और यकीनन उनको दुनिया में रहने का तरीका सिखाएं। मुझे ये भी बड़ी खुशी हुई सुनकर कि वो पाकिस्तान में 100 के करीब कंप्यूटर सेंटर बना चुके हैं। अब 100 के करीब कंप्यूटर बना चुके हैं, और सिर्फ लियारी में उन्होंने ये 7वां कंप्यूटर सेंटर बनाया है। और ये नहीं है कि सिर्फ कराची में ये काम कर रहे हैं, अभी अभी वो मुझे बता रहे थे कि अंदरून इलाकों में भी उन्होंने कोई 22 के करीब सेंटर बनाए। और इनकी ये कोशिश, जो अपना नाम भी नहीं लिखाना चाहता कहीं इश्तिहारों में, अपने उस कारोबार में जहां वो कंप्यूटर किसी और काम के लिए इस्तेमाल होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज के बारे में, यहां आज दुनिया की तालीम दिलाने के लिए अपने आप को पेश करते हैं। इस लियारी के उस इलाके में पेश करते हैं जहां कुछ बता रहे थे लोग कि कुछ दिन पहले यहां आते हुए लोग डरते थे, आते हुए कुछ लोग डरते थे कि यहाँ कभी कभी उन तोपों की आवाजें आती थी और गोलियों की आवाजें आती थी, और लोग अपने घरों से निकलते हुए डरते थे। आज हमें खुशी है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत में उस जगह पे आके कंप्यूटर सेंटर पर बैठे हैं कि हाँ जी, आज अपने दोस्तों को नए रास्ते दिखने का मौका मिलेगा। यकीनी तौर पर हुकूमत के पास कहीं कहीं फंड कम भी हो जाते हैं, और पीपल्स पार्टी ने भी यही कहा है कि हम क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए कोशिश करते रहेंगे। अब क्वालिटी एजुकेशन में यही होता है कि स्कूल का रंग अगर पीला हो तो हो, लेकिन अंदर दीवारों के अंदर वो जो पढ़ाने वाले लोग हैं वो अपनी जोश और जज्बे के साथ आके पढ़ाएं, गैर हाजिर न रहे। जो वहां बैठे हुए लोग हों वो अपनी इस इमारत से मोहब्बत करें। इस इमारत को कहीं अगर कोई रंग उतर जाता है तो रंग लगाएं कि जो बच्चे आए उनको अच्छा लगे स्कूल, जो बच्चे आए उनको फर्श अच्छा लगे, जो बच्चे आए तो उनको बेंचें भी अच्छी लगे, और वो आते रहें और इल्म हासिल करते हुए अपने पाकिस्तान के लिए और ज्यादा रोल अदा कर सके। ये आप ही के कोशिशों से ये सब हो सकता है। उन समाज दुश्मन अनासर की जो भी कोशिशें हैं उनको खत्म करना हमारा और आपका मिलकर फर्ज बनता है। तभी हमने ये कहा है, तभी उन्होंने ये बात कही कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस क़यादत का ये वतीरा, ये तरीका, ये मुजाहरा कि सबको साथ लेके चलो, यही एक चीज है जो हम सबको बचा सकती है। जब हमने इकट्ठे होके एक इंतजामी उमूर का जिम्मा लेना होगा तो इकट्ठे होकर इस मुल्क को हम बेहतर तौर पर तरक्की दिला सकते हैं। और अगर हमने इस तरह से आगे बढ़कर हमने काम करने का अगर सोचा भी तो सिर्फ इस वजह से कि जहां मोहतरमा की शहादत ने हमें आंसू रुलाए, हमें रातें जगवाई, हमें
चीखने और चिल्लाने की भी आवाजें आती रही, वहां उस मोहतरमा की शहादत ने शायद हमारे अंदर एक जज्बा भी पैदा किया कि जो मोहतरमा एक मिशन लेके यहाँ आई थी, अगर वो हमसे छीन ली गई है तो उनकी सोच और उनके फिक्र को अपने जिस्म में रखकर, दिमाग में रखकर वो चीजें कर जाओ कि कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हम वर्कर जब मोहतरमा के उस पास जाएं तो सर हमारे शर्मिंदगी से नीचे ना हो और कहें कि हाँ, हमने मोहतरमा तेरे रूह के साथ वफा की है, इस मुल्क की यकीनी तौर पर खिदमत की है और इस अंदाज से आगे बढ़ना चाहते हैं। खिदमत का जज्बा होना चाहिए, नीयत साफ होनी चाहिए और जब नीयत साफ हो, मेहनत का जज्बा हो तो खुदा उसका सिला जरूर देता है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने इस मुल्क में एक बेहतर माहौल पैदा करके जो आगे बढ़ने की एक रवश रखी है, इसके नतायज बहुत अच्छे उम्दा रहेंगे। जो जो हमारे बीच में, जो जो हमारी राह में रुकावटें थी, अवाम की हुकूमतों में रुकावटें थी, उनको हटाते जा रहे हैं, कामयाबियां हासिल करते जा रहे हैं। अभी सिर्फ 4 महीने हुए हैं। जैसे जाम मेहताब साहब ने कहा कि ये 4 महीने में हम क्या कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो हमने 4 महीने में किया है वो कोई 8 सालों में नहीं कर सका था। कम से कम उस आदमी से तो हम आजाद हो ही गए जिन्होंने हमारे रास्ते रोके हुए। मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे बहनों, यकीनन मसाइल अपनी जगह पे हैं, यकीनन मसाइल को हल करने के लिए अज़म रखा हुआ है। तभी हम कहते हैं कि पिछली हुकूमतें तो नाकामी का एक मिसाल बनी जा रही है कि आप लियारी के रोड्स पर भी देखो तो यही कहीं कोई गिरा पड़ा हुआ तो दिखाई देता है, कोई रास्ता कोई सीधा नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन अगर 8 सालों में कहीं अदम तवज्जोही की वजह से आपकी जिंदगी मुश्किल हो गई है तो यकीनन हमें फिर हक बनता है कि हम पूरा अरसा यहाँ रखकर, यहाँ 5 साल पूरे रहकर आपकी भरपूर खिदमत करने के बाद आप ही के साथ चल के और इस मुल्क को नए चांद लगाने के लिए आगे बढ़ सके। यकीनन अपने भाइयों पर एतमाद रखिएगा, अपनी क़यादत पर एतमाद रखिएगा, अपनी ताकत पर एतमाद रखिएगा, अपने उस अख्तियार पर एतमाद रखिएगा जो बेनज़ीर भुट्टो की वजह से आप सबको मिला है और पाकिस्तान के आप लोग मालिक बने हो। अब मालिक बनकर इस मुल्क को बनाएंगे, इस मुल्क को बेहतर करेंगे। इसी ज़मीन में आप सबकी कोशिशें, आपको अल्लाह करेगा कामयाबियां और मिलेंगी। बाकी सही सिर्फ 3 सेंटर है। 3 सेंटर बनने के बाद आपकी ताजपोशी हो सकती है। 3 सेंटर चलो 3 महीने में या 6 महीने में हो ही सकते हैं, लेकिन यकीनन अल्लाह आपको और हिम्मत देगा। यकीनन आप इस लगन में लगे हुए हैं। अगर आपने सिर्फ ताजपोशी सिर्फ लियारी की जगह पे करानी है तो ये ज्यादती है। 3 सेंटर के लिए पूरी सिंध पड़ी है, जल्दी कर लो, हम भी आएंगे आपकी ताजपोशी में, आपको ताजपोशी करवाएंगे।